Good morning, everyone. I am Pallavi Ade. I am the co-founder of Asian Pathfinders along with Shreya Deshmukh. Welcome to another edition of our Fireside Chats. Today's session is on Beyond Reservations, Women in the Gram Panchayats. For this session, we are partnering with Women for Politics. To give more details about it, we'll let the co-founders of the organization speak about it. Our speakers today are Madhu Joshi and Bhim Raskar. Before we go to the session, just a brief about Asian Pathfinders. So we were started last year as a knowledge sharing platform. Our aim is to bring speakers from various walks of life together to have these multi-disciplinary dialogues, and we do that through our fireside chats, which are held every Saturday, and also the dialogues series, which are held every alternate Thursdays. This month, we are doing women-centric issues on the occasion of being International Women's Day, Women History Month. So definitely watch out for our social media pages for that. Our aim is to be an informal way for connect and facilitate these dialogues and discussions on very important topics and a variety of topics. So if you want to join our future sessions, keep an eye on our social media pages. So, like I said, this entire month we are doing sessions which are related to women-centric issues. We're doing this through various tie-ups we've done, like for Women for Politics and others. That's about it. And obviously, in the latest part of the month, we will be doing a few more sessions that will be, sorry about that, and we posted on our social media handles. So the community guidelines obviously respect the views of others. We all come from different walks of life. We have our views. We are here to have these constructive dialogues and discussions. So please do that. Also, do not post any defamatory, abusive content. The session will be held in English and Hindi. So if anyone has any issues about the language, if you don't understand anything, message me or Shreyas and we'll be happy to translate it for you. Uh, Again, please respect the purpose of the community. The session will be in two parts. The first part will be where we have our speakers speaking for about 30 to 40 minutes about their experiences on the grassroots. And then we will hand it over to you for the questions. So you can keep coming it in the chat section. And if you want to talk about today's session, use our social media handles on Twitter or elsewhere. You can look for Women for Politics and Asian Pathfinders. And the session will be recorded and put on YouTube, so you can always share it with your network later. So this is our social media handles. Women for Politics on Twitter is WFPS Asia. If I got that right, please correct me, Akhil and Sugandha, if I'm wrong. But yeah. Uh, so about today's session, Sugandha will be introducing the speakers, but I have the pleasure to introduce Sugandha. She is the co-founder of Women for Politics, an initiative to improve the political participation and representation of women in South Asia. She is studied in law. She has studied on uh, a lot more. Her list is long, so I'll let you go look at it later. She has also experience in discrimination in public and private spaces in India and Europe, and she has a passion for social work which led her to pursue her women's studies. She's also studied human rights law at SOAS, University of London. She's a campaigner for gender equality and has been volunteering her time to initiatives for greater political participation of youth and women for the last 8 years. So over to you, Sugandha. Thank you very much, Pallavi. Thanks for the introduction and for the introduction of the session today. I must congratulate you on this initiative. I think I'm hoping to learn a lot from this session today. To start with, I think everyone here for a general kind of introduction to the reservation of women in panchayat level. The 73rd Amendment of the Constitution gave political status to women by reserving
1/3 of the seats to women in panchayat at the panchayat level. The 1/3, this reservation for women has been widely accepted, and in fact, by 2019, we had almost 19 states give increase this to 50% reservation. And while we have achieved this, we are trying to talk today about the things that have happened beyond reservations, beyond women just getting seats. And I think we are also trying to understand the work of women who have demonstrated leadership at grassroots, also have faced certain challenge and moved beyond that as well, and have continued to work. And on this International Women's Day, we would like to learn from two organizations which have been working deeply with these women, and understand from them how the women workers at the grassroots have been working, what has happened after reservation, after these states have actually achieved the 50% reservation. Today we have, I'd like to introduce the speakers. I'd request Akhil to present. Um, right. So the first speaker, well, we do not have, I guess Pallavi has already spoken about the session plan. We'll keep switching the speakers to make the session more interactive. So we have Mr. Bhim Raskar, who is the Director of Resource and Support Center for Development. It's based in Maharashtra. They lead Mahila Rajsatta Andolan at the state level, where they've been strengthening women leaders through trainings and building their leadership skills at the grassroots level. I think we can all read on the screen. But I think whatever I say, it's not enough, because we are all very young set of scholars and researchers trying to learn from people like Bhimji and Nexus Madhuji, who are very experienced in the field and come with a lot of experience on working and understanding the challenges that happen at the grassroots. And I look forward to speak to him and experience and understand the challenges and the work of women leaders and their success as well at the grassroots through the eyes of Resource and Support Center for Development. And next we have Madhuji. Yeah, Ms. Madhu Joshi, who's, as the screen says, she's a senior advisor for gender equity and governance, and her work at Center for Catalyzing Change is something that I've followed for the last couple of months now. I had the pleasure to work with her earlier as well on a webinar where we could bring women at grassroots who have with whom Center for Catalyzing Change has worked with. And I think those are amazing success stories that I had the pleasure to actually listen to and understand. Her experience on working on gender equity, advocacy for gender equality, I think is something we should all look forward to learn from. And as we move in this discussion, we would learn more about C3's work at the panchayat level, and her own. I would also invite her to share her own experience and thoughts on working with women leaders at the grassroots. So that's about our two distinguished speakers. Without, I think, getting into more discussions from me, and I'd like to move directly into questions. And I'd like to pose my first question to Ms. Madhu, and understand from her what has been the work of C3 for all our speakers to understand, and what are some of the key learnings on working with women in politics at the local bodies.
Madhu, over to you. Thank you, Sugandha, and congratulations, Asian Pathfinders and Women for Politics, for organizing this fireside chat. I always feel very energized and inspired when I see young professionals, so energetic and so enthusiastic about doing things even on Saturdays, and on a completely voluntary basis and through their own passion. So thank you and congratulations once again. Um, where should I begin with? So as an organization, as Center for Catalyzing Change, as C3, we are coming from the experience of over a decade where we have interacted with and implemented a program model with women panchayat leaders, mainly from the Gram Sabha, Gram Panchayat and Panchayat Samitis in the state of Bihar. Most of you would know that Bihar was one of the first states to raise the reservations to 50%. Today, in fact, we have 20 states who have 33% enhanced to 50%. And in the coming months, Bihar is headed towards the 4th round of panchayat elections, and it's going to be our 4th round of women leaders who we will be mentoring for the next 5 years. It has been 29 years, 29 साल हो गए हैं since the path-breaking amendment of 73rd Amendment to the Constitution, which brought about 1 million women into public life. And हमने हाल ही में ये भी देखा है कि करीब-करीब सभी states में और राष्ट्रीय स्तर पे भी more and more responsibilities are being handed to the panchayat level. We have seen our flagship पोषण अभियान हो जाए या स्वच्छ भारत अभियान हो जाए या बिहार में for example the chief minister has a हर गांव में गली और नली होने का प्रोग्राम, ये सब कुछ is being devolved to the ग्राम पंचायत, the village level. At the same time, implementation powers, fiscal powers are also being given to the panchayat leadership. कोविड क्राइसिस के समय हमने देखा था कैसे सब लेवल पे हम लोग छूट गए थे. So local government had to independently manage say the COVID management or the difficulties that the community was facing, ensuring specific needs and emergency services, how are they done? So all of this needs a good capacity at the level of the panchayat leaders. It is not just that you are going to a panchayat meeting and just making some interjections. उनको काफी काम करना पड़ता है, like a a complete professional day-to-day. I would like to call it a job. So under these circumstances, when so much power is given and so much responsibility is being given to panchayat leaders, what is the system doing to strengthen that capacity? And for that, it's important to understand the panchayat structure. Uski resourcing kaisi hoti hai? Who are the men and women who are actually coming into a role which requires them to be successful catalysts and change makers? So हमारा जो मॉडल है, एंड खास तौर पे जब महिलाएं चुन के आती है, तो इट इज अ डबल ट्रिपल मल्टीपल बैरियर्स, विच इज व्हाई reservations are made. आजकल काफी आज क्यों शुरू से ही बातचीत रहती है कि हम reservations क्यों रखते हैं. It is because कि reservations then address some of the barriers that certain disadvantaged populations या communities or like women face, because अगर वो barriers नहीं होते तो वो automatically चुनकर आती हैं. So हमारी पहली learning है कि there is a great need for information and capacity building for local government leaders to be efficient governance people. So there is a huge capacity deficit, and उसके लिए एक ट्रेनिंग काफी नहीं है. तो हमारा जो मॉडल है पंचायत के साथ काम करने का, इट इज एन आइटरेटिव प्रोसेस. तो हम रेगुलर शुरुआती एक ऑनबोर्डिंग ट्रेनिंग करते हैं, विच इज फॉलोड बाय रेगुलर क्वार्टरली मीटिंग्स, एक्सपोजर विजिट टू द फैसिलिटीज to which they are expected to know about, that what is the sub center supposed to do, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी क्या होती है, जो मिशन परिवार विकास फैमिली प्लानिंग की जो ड्राइव है बिहार में खास तौर पे, उसमें उनकी क्या रोल भागीदारी हो सकती है. एंड वी प्रोवाइड दिस कंटिन्यूअस अपडेटेड इंफॉर्मेशन इन डिफरेंट वेज थ्रू पिक्टोरियल बुकलेट्स, बिकॉज काफी महिलाएं पढ़ नहीं सकती,
audio capsules ताकि वो सुन के in a dramatized form they understand what they are supposed to do and they can take it forward. Checklists, pictorial checklist लेके जाना हेल्थ सेंटर पे, देखना कि वो सब है या नहीं, आइडेंटिफाई करना कि किस चीज की जरूरत है, एंड then that helps them to make plans and make strategies. Second learning is leaders need to believe and understand, women leaders खास तौर पे, not just women but men also, that they have a right and a role in development. Understanding and internalizing an accountability approach, they need to know what areas they can intervene as a matter of right. Most of them come in thinking that building roads, enabling access to some scheme, to some pension, that is all, that's their responsibility. And they are not very clear on ideas on how to ask questions, whether they can legitimately ask these questions from frontline workers, officials, that this needs to be done in my ward or in my panchayat. हमारी जो evaluation, तो हमने जो ये program किया है through 3 cycles in Bihar, we started with only 1 district and 2 blocks. And at the latest, we are in 14 districts covering 2,000 women. तो एक इवैल्यूएशन ये दिखाती है कि कैसे प्रायोरिटाइजेशन शिफ्ट होती है हमारे मॉडल से. जैसे शुरुआती तौर पे उन्होंने कहा कि इम्प्रूविंग हेल्थ सर्विसेज in their community is their responsibility. Only 3% said that, but in the end line, 83% felt that they have a role to play in improving health services. Similarly, standing committees होती है हर पंचायत में, लेकिन उनकी अवेयरनेस नहीं है. कई जगह पे हमने महिलाओं को देखा कि उनको पता ही नहीं कि वो पंचायत कौन सी स्टैंडिंग कमेटी है और किसकी वो मेंबर है, और यहाँ तक कि किसके मिनट्स में वो साइन भी कर चुकी है. स्कूल मैनेजमेंट कमेटी होती है हमारे. कई दीदियों को जब वो हमारे साथ जुड़ने के बाद जब वो देखने गई स्कूल में, तो उनको पता चला, अच्छा इस कमेटी में तो मैं मेंबर हूँ, मैं आके इसमें कुछ इसकी निगरानी कर सकती हूँ, मैं कुछ इम्प्रूवमेंट ला सकती हूँ. तो ये जो अवेयरनेस भी थी स्टैंडिंग कमेटी की, इट इंक्रीज फ्रॉम 16% इन द बेस लाइन टू 71% in the end line. Third, and very, very important, especially for women leaders, is the need for financial understanding. Most women said we just sign or we ask our husband. They're not regular participants in the budgeting and planning process. As a result, ये जो big ticket part है, soft things जो health center जाना, school जाना, वो उनके लिए आसान लगता है, लेकिन budget पे सवाल पूछना, कौन ये रोड का कॉन्ट्रैक्ट किसको गया है, मुझे कहाँ पे साइन करना है, इन सब चीजों के लिए महिलाएं ज्यादातर अपने फैमिली के पुरुष या जो मुखिया आके बोलते हैं उन पे निर्भर होती है, एंड विच इज अ वेरी बिग डिसएडवांटेज. सो वी नीड टू, द लर्निंग इज वी रियली नीड टू सीरियसली इन्वेस्ट in building women's capacities to understand finances, financial processes. तीसरा ये है कि very important is for women to be visible, to be participating, to be seen to be participating in meetings, doing things, raising the voice, and it's very important. जो हमारा model है, the process has to be to support women for that engagement. जैसे ग्राम सभा में जाना या पंचायत की जो कार्यकारिणी की बैठक होती है, उसमें ज्यादातर महिलाएं जाती नहीं थी या उनके हस्बैंड चले जाते थे, उन लोगों को उनको पता भी नहीं चल रहा था, घर आ जाता था, मिनट साइन कर देती थी. ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म है बिहार में. एक है लोक जन शिकायत केंद्र, ग्रीवेंस रिड्रेसल सेंटर, विच इज कमिंग आउट ऑफ अ राइट टू पब्लिक सर्विसेज. उस पे शिकायत दर्ज करना, कैसे उसको हम उस पे एक्शन कराना. इंक्रीजिंगली पोषण अभियान में जैसे वो काफी काम कर सकते हैं. तो ये सब उनके पास जानकारी शुरू में नहीं होती, जानकारी होती है तो फिर कॉन्फिडेंस नहीं होता बात करने के लिए. तो हमारा जो मॉडल है, वी हेल्प वुमेन टू बिल्ड देयर ओन एविडेंस. वो जाके खुद जाके देखें कि उनको जानकारी हो कि गाइडलाइन क्या है, फिर वो जाके देखें कि वो है कि नहीं है. फिर उसमें हमने देखा है कि वो ट्वीक्स भी करती है. जैसे पोषण अभियान में एक बहुत अच्छी कम्युनिटी लेवल एक्टिविटी है जिसे हम कहते हैं गोद भराई दिवस, विच इज इम्पोर्टेंस ऑफ गुड मैटरनल न्यूट्रिशन. तो जब महिलाओं ने देखा कि किस तरह से ये हो रहा है या नहीं हो रहा है, उन्होंने बुलाया ANM दीदी को, आशा वर्कर को, आंगनवाड़ी दीदी को कि ये हो, तब उन्होंने कहा क्यों ना उनके पति इसमें जुड़े.
उनको भी पता होना चाहिए कि प्रेगनेंसी में क्या पोषण, तो मेल एंगेजमेंट इन पोषण अभियान इज समथिंग दैट uniquely we have done in our program. It's also about how they are viewed. आप देखेंगे अगर गांव की एक दलित महिला वार्ड मेंबर होके आती है तो वो किस तरह से, किस कॉन्फिडेंस से जो MOIC है, मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज है, या जो BDO है, उनके सामने कैसे वो बात रख सकती हैं. So it is a big journey. I feel a big learning is we should also not be invest in capacity building सबसे पहले. Second, when you come to women leaders, you have to be patient for a journey. Someone who has been a laborer या घर से जो कभी निकली नहीं है, जिसके हर मीटिंग में शुरुआत में उनके हस्बैंड बैठते हैं, उनके लिए टू इंडिपेंडेंटली रीच अ स्पेस वेयर वो खुद जाए मीटिंग में और बात करे और लड़ाई करे, तो वो एक जर्नी के लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा. महिला सभा वो एकत्रित करे, महिलाओं को करे, तो ये सब छोटे छोटे इनोवेशंस करके हम आवर्स इज अबाउट अ वुमेन्स लीडरशिप प्रोग्राम. एंड वो क्यों करती है? इट इज अ ट्रेमेंडस बूस्ट टू देयर सेल्फ एस्टीम. They feel valued and respected, and therefore they do more. So with that, I'm going to stop here, and over to you, Sugandha. Thank you, Madhuji. I think these are really important aspects that you have brought in. While we talk about a reservation and look at women as a larger category to get represented in a leadership position, I think आपके बातों से भी also one of the key learnings for me is also that there are a lot of challenges at the individual and community level as well. And I think looking at women with the caveats of the caste or the places where they're coming from, and also I think understanding the gender difference. We talk about informed वोटर्स कि हमारे वोटर्स को बहुत इंफॉर्मेशन होना चाहिए और उनको सब पता होना चाहिए. I think we also need to work a lot on informed representatives, because I think that's also lacking, and through these capacity building programs, it's not just building their leadership skills, but also helping them being informed and keeping themselves updated and informed on what's happening around them, and utilizing it for that. And I think another thing that you mentioned is kind of understanding that it's a right and it's also a responsibility to participate. And I think understanding that for men and women, I think men, because they have access to a social life more than women, I think they already understand those aspects and they participate in the social challenges to some extent, as compared to women who are usually kind of made responsible for the household responsibilities and do not kind of, even if they become representatives, still have that gap of becoming a participant of the social or community decision making, and that plays as a barrier. On that, I think you also spoke about financial divide, and something came across during this International Women's Day, the divide, a video that is made by Paytm. I have shared the link also. I think it really talks about women at every level. And these are women who are, I'm also talking about urban women who still are way behind when it comes to financial information also. Forget about independence. And even if they're independent per se, in terms of earning their salaries, they still don't understand what is the whole realm of financial information that one should actually know. I've shared it for everyone else to look in the chat, and I think that's at this point I'd also like to move to Maharashtra, and also understand. I think this year's International Women's Day theme is choose to challenge. And I think we have a lot of stereotypes at the grassroots level and a lot of other challenges that women face and have also challenged also. And through RSCD's work, I think there are ways in which women are learning to challenge. And I'd like to learn from your experiences, Bhimji, ki, how are these women challenging the kind of grassroots stereotypes and barriers that exist
and how is RSCD kind of working towards it, and what are the learnings have been? Yeah, thank you Madhu ji, Sugandha ji. I will begin with हमारा जो slogan है, वोट हमारा राज हमारा, and we have a number of slogans with the campaign कि जो masses को समझने में आसान होते हैं, कभी-कभी हमारी भाषा उनको वहाँ तक नहीं पहुँचती है. So we have a number of stories, slogans, songs. लेकिन खाली मैं कॉन्टेक्स्ट जो है महाराष्ट्र का वो बताना चाहता हूँ कि हम लोग महाराष्ट्र, आई एम नॉट कंपेयरिंग विद बिहार, लेकिन ये थोड़ा जरूरी है कि महाराष्ट्र का जो कॉन्टेक्स्ट है उसमें थोड़ा आसान भी है. हमारा वोट हमारा राज हमारा, इसकी शुरुआत काफी पहले से हुई, लेकिन पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन की जो बात है या हिंदू कोड बिल की बात है, मुझे लगता है कि वहां से एक सहूलियत जो मिली, वो मुझे लगता है ये कॉन्टेक्स्ट में ध्यान रखना बहुत जरूरी है. तीसरी बात मुझे लगती है कि यहाँ पर बांग्लादेश से जो बचत समूह आए थे, इससे हमारा एक नारा है बचत सत्ता से राज सत्ता, जिसमें कि जो महिलाएं चुनकर महिलाओं ने जो बचत समूह शुरू किए थे, वहाँ पे एक सेक्रेटरी थी, अध्यक्ष थी, लीडरशिप गांव से ही अपने अपने पैर पे तैयार हो गई थी और वहीं से लोन लेना, कुछ उद्योग शुरू करना ये शुरू हुआ था. लेकिन उनके सामने बहुत बड़ा सवाल था कि इसके बाद क्या करें. मैं भी 20 साल हम लोग इसमें काम कर रहे हैं और शुरुआत हमारी वहीं से हुई कि बचत समूह में काम करने वाली जो महिला है, उनकी जो लीडरशिप है, उनको पंचायत में एक डेफिनेटली रास्ता दिखाई दिया कि यार यहाँ पर जाना चाहिए. दूसरी बात ये है कि महाराष्ट्र थोड़ा सा उस तरीके से पहले वुमेन्स पॉलिसी यहाँ पर बनी है. सावित्रीबाई और ज्योतिबा फुले, इनका भी एक शुरुआत से आज भी लोग हमारे यहाँ पे सावित्री गाथा 3 जनवरी से 10 जनवरी तक बिल्कुल पढ़ते हैं, बार बार याद करती है महिलाएं. बहुत सारी महिलाएं जो लीडर है उनके सामने सावित्रीबाई फुले का फोटो होता है एक एज एन इंस्पिरेशन. मुझे लगता है ये भी काफी मददगार हुआ है. उसी के साथ साथ हम लोग भी जो प्रोडक्ट है, जो मेल मेंबर्स है, फीमेल मेंबर्स है, हम लोग प्रोडक्ट है मुलगी झाली हो या बेटी आई है या गर्ल इज बॉर्न. ये जो नाटिका यहाँ पर 75 में शुरू हुई थी श्रीमुक्ति संगठन के द्वारा, हम लोग 1200 वॉलंटियर्स उसमें से तैयार हो गए थे और मुझे लगता है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये हर एक जिले में ये नाटिका गई थी इनइक्वालिटी के बारे में. तो ये सारी चीजें हैं जो हमें महाराष्ट्र में काम करने के लिए थोड़ी आसानी देती है. लेकिन उसी के साथ साथ दूसरा कॉन्टेक्स्ट जो है कि रिजर्वेशन तो मिल गया. पहले हमारे यहाँ पर भी 33% था, बिहार ने शुरुआत की, लेकिन हम लोगों ने बहुत मोर्चे निकाले, बहुत सारी लड़ाई की कि 50% चाहिए. बिहार में हुआ, यहाँ पर क्यों नहीं. लेकिन अभी ये लगता है कि जरा जल्दबाजी हुई है. महिलाओं के साथ जब बात करते हैं तो उनको भी लगता है 33% रिजर्वेशन था तो खासतौर पे पार्टी मेंबर जो है, पावर होल्डर्स है, वो थोड़े चुपचाप थे, इतना पता नहीं था, अरे 33% ही आने वाले, उसमें क्या फर्क पड़ता है. लेकिन 50% आने के बाद पॉलिटिकल पार्टी, खासतौर पे पावर होल्डर्स जो है, वो बहुत जाग गए. और हमें ऐसा लग रहा है कि ये भी ओपनली बोलना ठीक है कि हम लोग थोड़ा आराम से जाना चाहिए था. 50% के बाद पावर होल्डर्स ने काफी काम अपना शुरू किया और उसकी वजह से चैलेंजेस भी बढ़ते गए. ये एक बात ध्यान में रखना जरूरी है. दूसरी बात ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो 20 साल का अनुभव है, 20 जिले में हमारे एसोसिएशंस है ये महिलाओं के, और जितने हो सके अपने अपने पैर पे वो खड़े रह के काम कर रहे हैं. उसमें एक्स मेंबर्स भी है, अभी के मेंबर्स भी है, पोटेंशियल है, वो भी आना चाहते हैं, वो भी आ सकते हैं. लेकिन सब काम करते वक्त ये ध्यान में आया कि स्टेट विल है रिजर्वेशन के रूप में कागज पे आ गई, लेकिन सोसाइटी की जो विल है, मार्केट की जो विल है, अभी तक उनको सपोर्ट नहीं कर रही है. और खास तौर पर मुझे लगता है कि सोशल विल क्रिएट करना, इसी पे ज्यादा हमारा समय जा रहा है. एंड इट स्टार्ट्स फ्रॉम हस्बैंड, मदर इन लॉ, फिर परिवार, फिर रिश्तेदार. क्योंकि ये काम जब करना है ना तो बहुत सारे किस्से में बताते रहूंगा, इतना समय नहीं है. लेकिन महिलाओं को पहला झगड़ा होता है परिवार के साथ, और वो झगड़ा कर नहीं सकती क्योंकि वो जिंदगी भर के लिए वहां पे रहना है और 5 साल के लिए पंचायत है. तो पंचायत की 5 साल और वहां की जिंदगी, ये उनको, और किचन से उनको उठाया और तुरंत पंचायत में लाके बिठा दिया और बोला है कि चलो मैजिक करो. तो मुझे लगता है ये भी एक्सपेक्टेशन बहुत गलत है, वो भी देखना चाहिए. लेकिन एक बात डेफिनेटली है, मैं पहले काफी अलग अलग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में था, लेकिन ध्यान में ये आया कि गवर्नेंस के बगैर कुछ चेंज नहीं होने वाला. गवर्नेंस में जब तक हम लोग नहीं जाते हैं
इसीलिए 20 साल पूरे उसमें डटे हैं और हम लोग पूरी टीम काफी इस बारे में डटी हुई है कि ये होने वाला है, हो रहा है, लेकिन इट विल टेक टाइम। ये सोशल मूवमेंट की प्रोसेस इतनी जल्दी नहीं होती है। तो उसमें एक डेफिनेटली बात मुझे लगती है कि जिसको मराठी में हम बोलते हैं ना राजकारण, राजनीति जो आज की है, हम लोग राजनीति को छोड़ के बात नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर आज भी इलेक्शन जो होते हैं वो प्राइवेट पैनल्स है, लेकिन आप न्यूज़पेपर में आएंगे ना, कांग्रेस को इतना मिला, इतनी सीट मिली, बीजेपी को इतनी सीट मिली, ये आता है, मीडिया भी उसमें आता है और सब लोग भी कहते हैं कि अरे ठीक है इतना इतना। मुझे लगता है ये गलत है। दो यहाँ पर पार्टी नहीं है पंचायत लेवल पर, लेकिन डामाडोल वही होता है कि इतने पंचायत इतने इस पार्टी के साथ गई। तो मुझे लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि जो प्राइवेट पैनल्स है वहां पर भी हमारा काम करना बहुत जरूरी है। और इसीलिए बहुत बड़ा चैलेंज हमारे सामने ये रहता है कि जो पॉलिटिक्स की नींव बदली है, वो नींव बदलने का इम्पैक्ट बहुत एक ग्राम पंचायत के काम पर है, रिजर्वेशन के काम पर है। उदाहरण के तौर पर जो वैल्यूज है, हम लोग वैल्यू बेस्ड पॉलिटिक्स की जब बात करते हैं ना, तो नेचुरली कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज बिल्कुल बाजू में गई है और बाकी सारी चीजें, संस्कार और ये सामने सब आ रहे हैं, ये एक बात है। दूसरी बात है इश्यूज के बारे में, इश्यूज में डेवलपमेंटल इश्यूज के बारे में इतनी बातचीत नहीं होती है, बाकी सारे इमोशनल इश्यूज, रिलीजियस इश्यूज, ये सारी बातें सामने आ रही है। और तीसरी बात है कि पुअर फर्स्ट, ये हमारा जो नारा था पहले से, जब से हमारा स्वतंत्र फ्रीडम मिला है, तो मुझे लगता है ये भी साइड ट्रैक हो गया है। कौन फर्स्ट होता है आपको भी पता है, गांव में कौन कौन से इश्यूज होते हैं ये भी पता है, लेकिन मेरा कहना इतना ही है कि बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं कि जो इस काम के लिए बहुत फायदेमंद रहे, और कुछ मुद्दे ऐसे कि जिस पर बहुत हमें काम करना जरूरी है, करना पड़ रहा है। और इसीलिए वहां पे जो नए नए मुद्दे आए, जो वर्स्ट प्रैक्टिसेस राजनीति में आई है, तो मुझे लगता है कि राजनीति नाम की जो चीज है उसको पढ़े बगैर केवल पंचायत में रिजर्वेशन, रिजर्वेशन के बाद डेवलपमेंट, रिजर्वेशन के बाद गांव में बदलाव, ये नहीं हो सकता। और उसमें दो चीजें आ रही है, एक है कि सारी पार्टी एक जैसी है, ये एक बहुत चर्चे का, डिस्कशन का सब्जेक्ट है, और दूसरा अपॉलिटिकल होना ही सही मायने में काम करना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत जरूरी है आगे की सोच के लिए कि हम लोग पॉलिटिक्स का मतलब क्या समझते हैं, पॉलिटिक्स कहाँ पर नहीं है, और केवल ग्राम पंचायत का पॉलिटिक्स अलग करके उनको एम्पावर करना पॉसिबल नहीं। इट इज लिंक्ड विद ऑल द डायनामिक्स व्हिच आर देयर। तो मुझे लगता है ये महाराष्ट्र के बारे में अनुभव मैं बताऊंगा, लेकिन ये कॉन्टेक्स्ट है जिसमें कि हम लोग आज काम कर रहे हैं। चैलेंजेस क्या है, बाकी सारी बातें मैं डिस्कशन में बताऊंगा। थैंक यू जी, थैंक यू भीम जी। आपने एक सोशल विल की बात की, एंड आई थिंक उस पॉइंट पे एक क्वेश्चन मैं आप दोनों से पूछना चाहूंगी कि जो ये सरपंच पति पुत्र पिता का ये जो कॉन्सेप्ट है, जो शायद बहुत वाइड स्प्रेड है इंडिया में, अगर हम रिजर्वेशन एट पंचायत लेवल की बात करते हैं तो शायद वो सबसे पहले आता है कि अरे महिलाएं तो अक्सर सरपंच पति का शिकार होती हैं और मोस्ट ऑफ द वुमेन आर नॉट एबल टू डू एनीथिंग। क्या आपके अनुभव में मतलब ऐसे किस्से आए हैं, और अगर आए हैं तो उनको आपने कैसे डील किया है? I think we can have maybe Bhim ji first and then move to Madhu ji about this. Or yeah, thank you. ओके थैंक यू। एक तो सरपंच पति ये नेशनल इश्यू है, पता नहीं नेशनल के बावजूद ग्लोबल में क्या है, हम लोग बात करते हैं, हम लोग थोड़ा बांग्लादेश श्रीलंका, लेकिन वहाँ का कॉन्टेक्स्ट पूरा अलग है, उनके साथ भी काम कर रहे हैं। और इस नेशनल इश्यू में मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारी फैमिली सिस्टम है वो पैट्रियार्की और बाकी सारी चीजें हैं, वहीं से उसकी शुरुआत है। तो हम लोगों ने एक काम अच्छा किया है, महिलाओं का जितना हो सकते हैं हम लोग स्ट्रगल डॉक्यूमेंटेशन वर्कशॉप करते हैं। और एक कहते हैं ना कि सरपंच पति हो या सरपंच पिता हो, सरपंच पुत्र हो, अलग अलग उसके नाम है, या सरपंच पार्टी का लीडर भी होता है। महिलाएं ये बहुत लाइट वे में कहती है कि हमको 3 हस्बैंड को फेस करना पड़ता है, एक पार्टी का लीडर, एक रियल हस्बैंड और एक ग्राम सेवक सेक्रेटरी। ये 3 हस्बैंड को हमारी द्रौपदी हो जाती है, ऐसा उनका कहना है। और बहुत सारे अनुभव है, पर लेकिन हम लोग इसी पे बात करते हैं कि हाउ टू डील विद हस्बैंड्स। और ये स्ट्रगल डॉक्यूमेंटेशन वर्कशॉप में बहुत सारी महिलाएं नई नई चीजें सामने लाती है कि हम लोग इस तरीके से कर सकते। कोई इश्यूज जो है बहुत इंटरनल है,
इंटरनली वो लोग एक दूसरे के साथ बात करते हैं। लेकिन इसमें मुझे एक ध्यान में आया, जिस तरीके से मधु जी ने कहा कि हम लोग कैपेसिटी बिल्डिंग की प्रोसेस चलाते हैं, लेकिन इंटरनल स्ट्रैटेजीज इनके पास बहुत अच्छी है। और सरपंच पति के बारे में हम लोगों ने स्ट्रगल डॉक्यूमेंटेशन वर्कशॉप के जरिए वो स्ट्रैटेजीज काफी सामने लाई है। लेकिन ये मुद्दा बिल्कुल सही है कि अगर पॉलिटिकल फैमिली है और उनमें से महिला आई है, तो मुझे लगता है वो हम लोग थोड़ा साइड ट्रैक कर रहे हैं आजकल। हम लोग ज्यादातर कम्युनिटी लेड जो महिला काम कर रही है, वो बचत समूह में है, सोशल एक्टिविटी में है, कोशिशें करते हैं, क्योंकि गांव में डोमिनेंस तो है, क्लास का डोमिनेंस है, कास्ट का डोमिनेंस है, ये सारी चीजें है। इसलिए हम लोग ज्यादातर कोशिशें कर रहे हैं। पहला एक स्ट्रेटेजी करके महिलाओं ने सामने लाई थी कि कम्युनिटी लेड, ये महिला अगर आती है उसमें टिकट के लिए, तो टिकट जो मिलना है वो एक मुद्दा है। दूसरा है, जिस तरीके से मधु जी ने कहा था, 5 साल का ट्रेनिंग साइकिल चाहिए। केवल हम लोग जैसे कि अभी महाराष्ट्र में इंडक्शन ट्रेनिंग शुरू किया है, एक ही दिन का, तुरंत जब वो चुनकर आती है तो इमीडिएटली 5-5 साल तक महिलाओं को या मर्दों को भी पता नहीं चलता है कि उनके क्या हक है, उनको क्या काम करना है। तो इमीडिएटली हम लोगों ने एक इंडक्शन पॉलिसी बनाई है, विच इज बीइंग, जब अभी हमने शुरू किया है, अभी ऑनलाइन है बिकॉज ऑफ कोरोना, लेकिन ये बहुत जरूरी है कि उनको इमीडिएटली खुद जानकारी ऐसी दे कि वो काम करना। मुझे लगता है कि वो जो पंचायत में जाने से उनको बहुत डर लगता है कि वो ऑफिस में जाना है, कुर्सी पे बैठना है। मुझे लगता है कि वो जो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, तो 5 साल का ये सर्कल, हैंड होल्डिंग सपोर्ट बहुत ज्यादा लगता है, केवल ट्रेनिंग से नहीं होता है। हैंड होल्डिंग सपोर्ट, उनको हेल्पलाइन 24 घंटा, उनको कोई भी दिक्कत आती है तो उनको मदद करना, उनको राहत दिखाना, ये मुझे लगता है ये बहुत जरूरी है। इसलिए हैंड होल्डिंग मैकेनिज्म्स महिलाओं ने काफी अच्छे डेवलप किए। जैसे मैंने कहा, पीयर लर्निंग इज वेरी यूजफुल। वो समझिए हमारी 1300 महिलाएं अभी चुनकर आई है, तो वो एक दूसरे के साथ नंबर देना, एंड दे आल्सो ट्राई टू लर्न फ्रॉम ईच अदर। तो HLP, हॉरिजॉन्टल लर्निंग या पीयर लर्निंग, एक बात हम लोगों ने काफी यहाँ पे कोशिश की है कि इस पे मदद होती है। और एक हमने महिला राजसत्ता सुरक्षा विधेयक दिया है गवर्नमेंट के पास, कि कोई भी प्रॉक्सी अगर है इस तरीके से सामने आता है, प्रूव होता है, तो उनको पनिशमेंट होनी चाहिए। लेकिन ये घर वालों को पनिशमेंट करे, इतना आसान नहीं है। वो पॉलिसी भी अब शुरू है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सरपंच पति के बारे में और एक मुद्दा हम लोग जो कोशिश कर रहे हैं कि जितने हो सके मेल मेंबर्स भी काम में लाए जाए। महिलाओं का मुद्दा है, केवल महिलाएं काम करें, इससे मैं भी 20 साल से काम कर रहा हूं और मुझे लगता है बहुत चैलेंजिंग है महिलाओं के साथ भी काम करना। लेकिन हम, मेरे साथ और कुछ पुरुष है, और हर एक गांव में हमारी ज्योतिबा फ्रंट है, मतलब ज्योतिबा, सावित्री और ज्योतिबा, तो हर एक गांव में छोटी छोटी है, लेकिन जो महिलाओं को सपोर्ट करते हैं, ऐसे मेल मेंबर्स भी वहां पर है। हम लोग परिवार सम्मान पत्र भी देते हैं कि एक परिवार है, थोड़ा फ्रीडम दे रहा है सरपंच को, पंच को, तो उनको परिवार सम्मान पत्र, और काफी जरा मिनिस्टर है और कोई बड़े मृणालताई गोरे है और ऐसे लोगों के, तो ऐसे स्ट्रैटेजीज महिलाओं ने काफी निकाली है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है दिस इज कम्प्लीटली लिंक्ड विथ हमारी फैमिली सिस्टम और पैट्रियार्की सिस्टम, और उसके साथ हमें काम करना पड़ेगा। अलग सरपंच पति के लिए कुछ स्ट्रैटेजी बनाओ, ये उनके साथ ही काम करते करते हमको जाना पड़ेगा। थैंक यू जी, थैंक यू भीम जी। And moving to Madhu ji, I think I'd also want to really listen about any experience of any particular example that you might have, because I think in my interaction with some women whom you've been working with, I think I've come across such amazing examples. I would also want to learn and know about that. Yeah. यस, मैं भीम जी ने बिल्कुल सही मुद्दे पे चोट रखी है, बट आई ऑल्सो वांट टू से कि इट इज वेरी easy to put down women, ridicule women, make fun of them, or if make fun of the husband. You know, एक है बिहार में हमारे MP मुखियापति, हाँ, तो बड़ा सा पोस्टर है, उनका फोटो छोटा सा है, हस्बैंड का फोटो बड़ा सा है। बट इसके जवाब में मैं कुछ आंकड़े और कुछ फैक्ट्स कहना चाहूंगी कि जैसे कि हमारी जो जहाँ इंटरवेंशन एरिया में डेटा देख रही थी, जब भीम जी बात कर रहे थे, तो जो है 34% of the women were married before the age of 18. 23% did not go to school. A large number of them did not complete school, right? Then, I mean, about phone, 63% of them have a phone, but 24% have a
smartphone, which they don't know how to use, right? तो हमारा जो गवर्नेंस सिस्टम है जैसे कोविड के समय में था, दे आर एक्सपेक्टेड टू सुपरवाइज, मॉनिटर, इंश्योर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन एटसेट्रा. उनको फोटो खींच के भेजना पड़ता है. ये या तो उनके हस्बैंड कर रहे हैं, नहीं तो उनके बेटे कर रहे हैं. उसी तरह से उनको मीटिंग में जाना है 5 किलोमीटर दूर, जहां भी दूर, रात हो जाएगा आने में, तो फिर कौन उसको लेके जाए? क्या ट्रांसपोर्ट साधन है? क्या वो ट्रांसपोर्ट साधन सेफ है? क्या उसको वो अफोर्ड कर सकती है? तो उसके लिए तो कोई तो चाहिए ना. एंड वी हैव टू स्टार्ट समवेयर. वी कैन नॉट वेट फॉर एवर फॉर सोशल नॉर्म्स टू चेंज. Visibility as a gender practitioner and an activist, I feel that more women जब रहेंगे पब्लिक स्फीयर में, पब्लिक स्पेस में, तो लोगों का भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि women can be competent leaders. जो हमारी एरिया में जो महिला दूसरी बार चुन के आती है फॉर एग्जाम्पल, वो बहुत थोड़ा आगे होती है, तो उनका क्रेडिबिलिटी भी बड़ा होता है. हमने एक टेली सर्वे किया ड्यूरिंग आफ्टर लॉकडाउन कि उन्होंने लॉकडाउन के दौरान क्या क्या किया. तो उन्होंने कहा कि हाँ दीदी, after the lockdown, the people think that we can also do many things, but there are these practical problems which take time and which have to be overcome. Anecdote, अगर सुगंधा ने मुझे एक एनेक्डोट बताने को बोला, तो हम जब नए ग्रुप के साथ शुरू करते हैं काम, तो सबसे पहले एक काम हो जाता है हमारे लिए कि फैमिली और हस्बैंड को कन्विंस करना कि वो 3 दिवसीय रेसिडेंशियल ट्रेनिंग के लिए उनको वो परमिशन दे, वो आए. एंड कभी कभी ये भी देखा है कि हस्बैंड साथ में बैठे हुए हैं, ट्रेनिंग सेशन में जाएंगे ही नहीं, राइट? लेकिन उसी महिला को अगर 3 साल बाद आप उनसे बात करो तो बोलेंगे अब तो दीदी मैं बैठती हूँ, मैं अपना बात रखती हूँ. हस्बैंड आते हैं साथ में, वो छोड़ देते हैं, मैं उनको बोलती हूँ आप चुप बैठना या आप आना नहीं. सो women also develop their own strategies how to solve the problem. So here it was a problem of mobility and how to then gradually overcome it in their own way. दूसरा ये होता है कि महिलाओं का एक डिस्प्रोपोर्शनेट बर्डन है कि घरेलू काम का, चाहे वो घर के लोगों का देखभाल का हो या घर का जो काम है, जो एंटरप्राइज है, चाहे बकरी मुर्गी रख रहे हैं या कोई खेती, उसमें भी उनका अनपेड लेबर में बहुत ज्यादा समय जाता है. एंड उसमें हमने देखा है कि महिला जो है, शी इज नॉट गेटिंग someone else to help her unless it is her bahu or it is her daughter. And that is so, जैसे वो एक मुखिया दीदी ने बोला कि मेरी तो अब बहू आ गई है घर में, वो सारा काम कर रही है, तो मैं फ्री हो गई हूँ, मैं पूरा पंचायत का काम देख लेती हूँ. And the work that their female relatives are doing is valued less by them than the assistance they get from the husband or the son in doing the government job, in doing the government program work that they are supposed to do. तो ये है कि महिलाओं में भी एक deep internalization है patriarchy. उसका हम लोग घरेलू हिंसा पे भी बात करते हैं, तो फर्स्ट रिस्पॉन्स इज डिनायल, नहीं हमारे यहाँ तो होता ही नहीं है. सेकेंड, ये घर का मामला है, पुलिस को क्यों बुलाएं, हम सुलझाने की कोशिश करेंगे, हम समझाएंगे. आजकल कोविड के समय इतने आदमियों के जॉब चले गए हैं, बेचारे वो पी रहे हैं, ताश खेल रहे हैं, इतना टेंशन है, तो वो तो कहीं तो वो निकलेगा, तो हम उनको समझा देते हैं. तो फॉर द वुमन ऑल्सो इट टेक्स टाइम, बट दैट इज नो रीजन नॉट टू have more women in politics or political life. जैसे जैसे वो आगे जाएंगे उसी तरह से तो वो politically competitive होंगे. बिहार जैसे प्रदेश में जहाँ काफी progressive policies है, there is 50% reservation for women in government jobs, for example. You have a conditional cash transfer scheme throughout her education till she completes school without getting married. So काफी कुछ progressive policies है. Jivika is one of the biggest self-help group network for Bihar. So the environment भी धीरे धीरे बदलता है. इनफैक्ट अभी के विधानसभा चुनाव which was like national news, उसमें ज्यादा महिलाओं ने वोट दिया है compared to पुरुष. So things are changing. So I would like to believe it's that things will just get better. आजकल हम पढ़ते भी हैं कई जगहों पे, पंजाब में कहीं ऐसे मेंबर्स की मीटिंग हो रही थी, तो जो ऑफिसर थी उन्होंने बोला कि हस्बैंड्स मीटिंग में आएंगे ही नहीं. तो धीरे धीरे the conviction that women can do, that is also increasing. At the same time, not to deny that हमारा जो social structures है, जो social norms है, इसी वजह से और भी उसको पकड़ के रखते हैं. इन लोगों में एक धारणा है कि आजकल
ज्यादातर सुविधाएं, ज्यादातर कोटा या सब कुछ महिलाओं के लिए है, हम बेचारे पुरुषों का क्या होगा। तो वो भी वहां से भी एक बैकलैश आता है। तो इसीलिए सरपंच पति बोलना आसान है, बट ये रियलिटी भी है, बट नॉट टू डिनाई कि उससे निकल के भी नेताएं आ रही हैं, एंड धीरे धीरे वो बदलेगा। एंड therefore I mean even in parliament you will see it's not that the picture is that different, but India we are way ahead. We have had women ministers in non-traditional portfolios, for example. So जैसे जैसे और एक रोल मॉडल इफेक्ट होता रहता है, जैसे जैसे समय जाएगा, आई थिंक थिंग्स विल गेट बेटर। Thank you, Madhuji. I think from this, I mean, the first part of our discussion, जो कि मुझे, if I have to kind of summarize this discussion, I think one of the key takeaways is the social belief system that while we have a very favorable policy, 33 से लेकर 50% तक, something that we are national level पे हम अभी fight ही कर रहे हैं, हमें मिल गया एक बहुत फेवरेबल पॉलिसी। लेकिन जो सोशल बिलीफ सिस्टम्स हैं, कल्चरल और कम्युनिटी बिलीफ सिस्टम्स हैं, उनकी वजह से जो बैरियर्स खड़े हो जाते हैं, इवन विद अ पॉलिसी, फेवरेबल पॉलिसी, डीलिंग विद दोज आर वेरी एसेंशियल। And I think while we are talking about how we can, and I think Madhuji also very rightly ended with a very positive note that that I think it's a very widespread, I mean, while हम बहुत इजीली बात करते हैं ये सरपंच पति एटसेट्रा की, आई थिंक ये भी सच्चाई, एक पैरेलल सच्चाई है कि बहुत महिलाएं आगे बढ़ के आ रही हैं, और हमें ज़रूरत है वैसे महिलाओं से सीखने की भी। और आई थिंक जो सरपंच पति और पुत्र के जो महिलाएं हैं, जो जिनके पति आगे बढ़ के उनका रोल ले रहे हैं, उनको भी शायद ऐसी बाकी महिलाओं से इंस्पिरेशन मिलेगी, और सिविल सोसाइटी जो हमारी अपना कैपेसिटी बिल्डिंग इंटरनली भी एक्सटर्नली भी कर रही हैं, आई थिंक वो सारे फैक्टर्स मिला के आई थिंक वी आर मूविंग इन सर्टन पॉजिटिव डायरेक्शन। एंड आई थिंक दीज आर लर्निंग्स जो शायद बाकी स्टेट्स, आज हम सिर्फ कुछ ही स्टेट्स की बात कर रहे हैं, बट आई थिंक बाकी स्टेट्स भी इन चीज़ों से लेसन्स ले सकते हैं। And I think talking about lessons, I'd like to move to our next discussion, the next part of the discussion, which is to understand what needs to be done when we are talking about women in Panchayat. I think a very common or expected trajectory is कि women leadership roles लेंगी, आगे बढ़ेंगी, state roles लेंगी, आगे बढ़ेंगी, national leaders बनेंगी, अगर हम leadership की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर हम आज देखें तो हमारा जो परसेंटेज ऑफ विमेन है स्टेट असेंबलीज में या नेशनल असेंबलीज में, वो उस हिसाब से नहीं है जो हम पंचायत असेंबलीज, पंचायत लेवल पे जो हम महिलाओं को देख रहे हैं। और उस लीडरशिप ट्रैजेक्टरी जो है वो क्यों नहीं हो रही है, एंड आई थिंक व्हाट फ्रॉम योर एक्सपीरियंसेस would be needs to be done to have these leaders move up the ladder also, and go beyond this whole idea of just having reservation as the pathway, but also having a clear trajectory of leadership. So I think we can start with Madhuji and then move to Bhimji and understand from your experiences on this. थैंक यू सुगंधा। मुश्किल है मेरे लिए थोड़ा सा कहना कि व्हाट एग्जैक्टली नीड्स टू बी डन, बिकॉज हमारी जो पार्लियामेंट है या जो अलग अलग स्टेट में विधानसभा है, दे आर अ रिफ्लेक्शन ऑफ द सोसाइटी दैट वी आर लिविंग इन, राइट। हमारा जो इकोनॉमी इज ग्रोइंग, राइट, लेकिन इंडिया इज वन ऑफ दोज आउटलायर कंट्रीज जहाँ पे while the economy is growing, more women are becoming educated, completing their education, but more and more women are falling out of the workforce. Why is that? So and if you look at some of the data about around women's work, what have women really said? They have said we want to work close to home. Why do we want to work close to home? So that we can balance our domestic responsibility along with a little bit of earning.
So women are also settling, so to say, for lesser earning compared to their skills or capacity, so that they are able to manage the home front, which they also feel is their natural responsibility, right? A lot of that is also, if you compare East Asia and you compare with South Asia, how women are, what is women's empowerment levels, or what is their participation in the workforce. There is a very high value in India placed on women's honor. अगर आप किसी भी political campaign को अगर देखेंगे या women in public life को देखेंगे, women who are out there, the first thing is to cast aspersions on her character and her honor. So there's a very high value attached to that. So the trade-off between going far away from home to work and getting a little money, and I'd rather not face the struggles. So politics is also in a similar vein is not considered a very respectable profession. And hats off to the women leaders in political parties and in Parliament and Vidhan Sabha who have come up with or without family support, because they are there. And I was reading somewhere that there's the data around women MPs being more vocal and more active in Parliament compared to as a proportion compared to the men. So that is also something that will change. But yes, there is important to have, say, a solidarity forum of women politicians which cuts across party lines. Today, our country, the environment, the politics is vitiated, and with a lot of the different parties, their ideologies, and the way it works. But it's very important. So Bhimji was talking about women's self-help groups. Why are they important? Because women collectivize. Similarly, do we see very strong, robust, or relevant and actually working platforms of women at higher levels? Do we see that? So it's important for women to come together so that they fight this common battle. They may be coming from all political colors. So there is a pending women's reservation bill in Parliament, and I think that too is important, because unless you do that, it's not, the numbers are just not going to rise, because for women to be politically competitive, you need money, you need a certain backing, you need a certain, the ability to go out there and do it, right? So yeah, I'll stop here and wait to hear from Bhimji on this. Shall I? एक तो एक्चुअली व्हेन वर्किंग विथ इनके पंचायत में काम करते वक्त तालुका पंचायत, पंचायत समिति और जितनी महिलाएं चुनकर आई है एज ए MLA, MLC और उसी के साथ साथ जो MPs हैं, इनका एक हम लोगों ने कलेक्टिव बनाया है और इनके साथ रेगुलर डायलॉग करना बहुत ज़रूरी, क्योंकि इश्यूज जो है उसमें ज़्यादा फर्क नहीं है। ये फर्क है कि ये गांव है और खासदार या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी काफ़ी बड़ी है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो महिलाएं चुनकर आई है अलग अलग, उनका एक बियॉन्ड द पार्टी कलेक्टिव हम बना के कोशिश कर रहे गए 5 साल से कि इनके साथ ये बियॉन्ड पार्टी डिस्कशन होते रहे कि वुमेन्स एम्पावरमेंट जो पॉलिटिक्स में है उनके लिए क्या किया जाए। उसमें से कुछ प्रोसेसेस सामने जरूर आ रही है। दूसरी बात है कि मेरा मानना है, मैं इलेक्शन कमीशन के साथ काफ़ी क्लोजली काम कर रहे हैं हम लोग, एक 10-12 इलेक्शन कमिश्नर्स के साथ भी बात हो रही है, लेकिन मेरा मानना ये है कि इलेक्शन इसकी जड़ है कि जो इलेक्शन आज दिन ब दिन फ्री एंड फेयर से काफ़ी दूर होते जा रहे हैं और दिखाई दे रहा है क्लियरली उनके भी इश्यूज हैं कि उनको खुद की ऑटोनॉमी नहीं है, इलेक्शन कमीशन का खुद को स्टाफ नहीं है। तो उनका यही कहना है कि एक रात में हम लोग कैसे जो स्टेट एम्प्लॉई है उनको अपने इसमें लाकर तुरंत उनको कैसे बगला बनाएं, ये उनका प्रॉब्लम है। तो मुझे लगता है कि इलेक्शन जितने फ्री एंड फेयर होंगे उतना महिलाओं का पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, ये दूसरी चीज है। मधु जी आप जो कह रही थी विनेबिलिटी के स्ट्रेटेजिक मैकेनिज्म काफी खोजने पड़ेंगे, क्योंकि वहां पर आज तो महिलाएं यही बात कर रही है, मैं कल सुगंधा जी के साथ भी यही बात कर रहा था कि हर एक इलेक्शन से पहले हमारी जो मीटिंगें होती है सब महिलाओं का यही कहना है कि हम लोग यहाँ पर जो बोलते हैं ना बिल्कुल सही है, कॉन्स्टिट्यूशनली जाना चाहिए, वो सारे वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब गांव में जाते हैं तो गांव
बस से उतरने से शुरू हो जाता है कि कितना पैसा मिलने वाला है। तो इट इज वेरी मनी सेंट्रिक और वो हम लोग नाकार नहीं सकते। तो मुझे लगता है हम लोगों ने कुछ कुछ मैकेनिज्म ढूंढे हैं, वो फाइनल ऐसे नहीं है, लेकिन विनेबिलिटी मैकेनिज्म जो है ना वो ढूंढने पड़ेंगे। और विनेबिलिटी को ही एक महत्व है, जैसे कि हम लोग हर एक वार्ड में जाकर अपना अपना वार्ड का मैनिफेस्टो बनाते हैं, और कुछ महिलाएं चुनकर आई है उस तरीके से कि लोग अपना मैनिफेस्टो बना रहे हैं और फिर उस तरीके से 5 साल मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो मुझे लगता है इसमें थोड़ा जाना पड़ेगा, दैट इज वन थिंग। दूसरी बात ये है कि पता नहीं आपको बताऊं या किसको, लेकिन हम लोग जो इस मामले में बहुत ही जागरूक है, महत्व समझ में आ रहा है। मेरा मानना ये है कि वुमेन्स मूवमेंट में जितनी महिलाएं हैं, बाकी सारे अलग अलग जगह पर इश्यूज पे सिंसियरली जो लोग काम कर रहे हैं, हमारी महिलाएं अभी उनको पूछ रही है कि आप हमको ट्रेनिंग दे रही है, आप पॉलिटिक्स में क्यों नहीं है, आप पंचायत क्यों नहीं लड़ती है, आप तालुका पंचायत में क्यों नहीं जाती है। तो मुझे लगता है ये सोचने की बात है कि केवल हम लोग ट्रेनिंग दे लेकिन हम लोग उसमें ना उतरे। पॉलिटिकल जो अभी मधु जी कह रहे थे कि वो थोड़ा करियर के हिसाब से इतना जाना माना नहीं है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ज्यादा से ज्यादा जो सिटीजन्स ऐसे हैं जो ये चाहते हैं, वैल्यूज मानते हैं, उन लोगों ने भी पॉजिटिवली सोचना जरूरी है, दैट इज वन थिंग। और हम लोग बहुत कोशिशें कर रहे हैं कि हर एक पार्टी की अपनी एक वुमेन्स पॉलिसी बने, उनकी एक कैरेक्टर असैसिनेशन इज द बिगेस्ट थिंग जो बहुत फेस करनी पड़ती है, और उसके लिए जवाब ढूंढते हैं लेकिन टेम्पररी है। तो हर एक पार्टी अपना अपना वुमेन्स पॉलिसी क्यों ना बनाए, अपनी इंटरनल कंप्लेंट कमेटी क्यों ना बनाए। अभी हमारे यहाँ पर एक नई नई जो पार्टियां हैं वो ही बना रही है, लेकिन जो पहले से यहाँ पे पार्टी है वो लोग ये नहीं बना रहे। तो मुझे लगता है ये सारी चीजें हैं कि हमारा रिजर्वेशन लोकसभा में और वहां का क्यों रुक गया है, कितने साल हो गए, क्योंकि सारे मेन फोक फ्रॉम ऑल द पार्टीज दे डोंट वांट इट। ये बिल्कुल सही है। अब सवाल ये है कि उसको सामने लाने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि मधु जी है, हम सब लोग, हम सबको मिलकर वो कैंपेन करना पड़ेगा कि हमें चाहिए। नहीं तो मैं कल ही इनके साथ बात कर रहा था कि यू टर्न बहुत बढ़ रहा है, महिला में राजनीति में आती है और फिर से किचन में जाती है, ये परसेंटेज बहुत बढ़ रहा है और ये वास्तव है। तो मुझे लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रमोशनल पॉलिटिक्स भी हो, और जो महिलाएं आई हो राजनीति में जो अच्छा काम कर रही है, बढ़िया काम कर रही है, बहुत सारी महिलाएं हैं। हम लोग हर साल एक किताब सक्सेस स्टोरी का छाप रहे हैं, लेकिन इनकी संख्या बढ़ना और वो संख्या सारे दुनिया को पता चलना कि ये ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं, दे आर नॉट सरपंच पति। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीजें कोशिश कर रहे हैं हम अपने लेवल पर, क्योंकि केवल ग्राम पंचायत में काम करके, ट्रेनिंग का काम करके नहीं होगा, ये पूरा कॉन्टेक्स्ट इसको धक्का देते रहना पड़ेगा। थैंक यू। थैंक यू भीम जी। आई थिंक जो आपने यू टर्न की बात की है, अगर आप थोड़ा एक दो और शब्द, आई नो हमने पर्सनली इस बात पे डिस्कशन किया है, बट आई थिंक फॉर द लार्जर ऑडियंस आई थिंक अगर आप थोड़ा सा एडिशनल एक्सप्लेन करें। जनरली क्या होता है ना, नो कॉन्फिडेंस मोशन नाम की जो चीज है, तो जो महिला कॉन्फिडेंट है, जो महिला तुरंत करप्शन है, लीकर का इश्यू है, इस पे उंगली रख देती है, इन महिलाओं को बहुत तकलीफ होती है। नो कॉन्फिडेंस मोशन उनके ऊपर ही आता है। अभी हम लोग कानून भी चेंज कर दिए, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो महिलाएं राजनीति में आ रही है, उनको 5 साल के बाद राजनीति में अनुभव जो आता है, उसी अनुभव के आधारित आगे चलना बहुत जरूरी है। आगे उनको, लेकिन वो फिर से अपने घर में चली जाती है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि इसमें हम लोग टिक नहीं पाएंगे, क्योंकि सच्चाई से जाने की कुछ कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे एक उदाहरण के तौर पे बताता हूँ, हमारी सोलापुर की एक महिला थी, उन्होंने बहुत भाषण बहुत अच्छा किया, मैंने ये किया वो किया, लेकिन कॉफी पीते वक्त मैंने ये पूछा उनको कि आप ये कैसे कर लेते, क्योंकि उनका बिल्कुल स्ट्रैटेजी उन्होंने क्या बताया, जब घर के अंदर मैं जाती हूँ तो मैं खुद को समझती हूँ कि बहुत मूर्ख हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है, और जब पंचायत में जाती हूँ तो मैं खुद को ये समझती हूँ कि मुझे सब आता है, मुझे सब जानकारी है, बजट समझ में आता है, ऑर्डर समझ में आते हैं, सर्विसेज स्कीम सब समझ में आ रहे हैं। तो मैं ये दो रोल कर रही हूँ, घर पे जाते वक्त मैं मूर्ख हूँ और पंचायत में आते वक्त मैं बहुत ही इंटेलिजेंट हूँ, ये करती हूँ। तो जब कॉफी पीते वक्त मैंने उनको पूछा कि ये डबल रोल आप करते हैं तो ये इससे तकलीफ नहीं होती है इमोशनल, तब फिर वो रोना शुरू कर दी, और वो महिला आज फिर से राजनीति में नहीं है। फिर हम लोगों ने उनको ट्रेनर बना दिया और अलग अलग तरीके से उनको राजनीति में रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो असल राजनीति में नहीं है।
ट्रेनिंग के राजनीति में है। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण के जिसमें इमोशनली पता चलता है कि वो महिलाएं बोल रही है, करने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो जो मैं बात कर रहा था कि सोसाइटी का जो सपोर्ट होना चाहिए। और सबसे, पता नहीं मधु जी के यहाँ पे क्या अनुभव है, सबसे बड़ी दिक्कत है ये है ब्यूरोक्रेसी। हमारे यहाँ पर लोग, महिलाएं यही बोलती कि ग्राम सेवक राज है, हमारा राज वहाँ पे नहीं चल रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ब्यूरोक्रेसी भी सेंसिटाइज होकर उनको सपोर्ट किस तरीके से करें। वो ही ज्यादातर कोशिश करते हैं कि उनका जो क्या कहेंगे एडजस्टमेंट करना है वो उनके हस्बैंड के साथ थोड़ा आसानी से हो जाता है। तो ये सारी बातें हैं कि ब्यूरोक्रेसी भी उतनी सपोर्टिव नहीं है। इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर सेक्रेटरी के लिए 33% महिलाएं मांगी, अभी है, धीरे धीरे वो भी दौर बदलते जा रहा है। लेकिन ये सारी चीजें हैं यू टर्न के बारे में कि उसको रोका कैसे जाए। जी थैंक मैं कुछ कहना चाहूंगी। या प्लीज प्लीज। यस, मैंने चैट पे एक स्टडी डाला हुआ है, फरजाना अफरीदी है इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट के। तो उनका जो पेपर दिखाता है, जो लीकेज जिसको हम बोलते हैं नरेगा या किसी स्कीम में जो लीकेज होता है, वो महिला जो चुन के आती है उनके टेन्योर में शुरुआत में वो ज्यादा होता है, और जैसे जैसे समय के साथ उनका फिर जब अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है तो दे आर एबल टू मैनेज दैट करप्शन बेटर। एंड दूसरे भी अलग अलग रिसर्च स्टडी हुए हैं एस्थर डुफ्लो वगैरह के, तो दिखाते हैं कि जहाँ पे महिला नेता होती है और वो ट्रेनिंग मिले ना मिले, वो लोग ज्यादा पब्लिक गुड्स में, बेटर स्कूल, बेटर हेल्थ, they are generally better governed when it comes to development. एंड उसके लिए वो थोड़ा समय लगना पड़ता है। जैसे कि मैंने बोला, जब किसी ने कभी पहले चेक साइन ही नहीं किया हो, जिसको व्हाट्सएप खुद से यूज करना आता ही नहीं हो, जिसका फोन कभी बेटे के पास है, बेटी के पास, किसी और के पास है, तो उससे हम क्या उम्मीद रखते हैं, उसके लिए भी हमें थोड़ा रियलिस्टिक होना पड़ेगा। Thank you, Madhuji. Thank you for sharing the study. I think that's very rightly pointed out, and I think BMG also. I think these are certain challenges which we probably should have expected, but do not end up doing. And I think the challenges, एक जो institutional level पे challenges हैं, और दूसरा जो public level पे challenges हैं, which is entering public life for any woman. I mean, I think आपने आशा workers की भी बात की है, SHG women की भी बात की है. I think this taking that step outside and becoming publicly active also within a community has its own certain kinds of challenges. And I think one of the most important ways is also to have more women outside in the public life. It probably seems like a cycle, but I think with the intervention of individuals and experienced professionals and civil societies, I think we've been able to make certain changes in having more women in public life, in politics, to at least make the space more acceptable. I think एक जो सॉलिडारिटी की भी बात कही गई है कि जब ज्यादा महिलाएं हैं आसपास, एंड आई थिंक तो एक जो लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस है टू गेट इनसाइड अ रूम और टू गेट ऑन स्टेज एंड स्पीक, आई थिंक वो एक अलग तरीके का एक्सेप्टेंस आता है, एंड हैविंग दैट सॉलिडारिटी एट एवरी लेवल इज काइंड ऑफ क्रिटिकल एंड एसेंशियल. एंड आई थिंक एक पोस्ट पार्टिसन जो सॉलिडारिटी है, आई थिंक वी ऑलवेज ट्राई टू inclined towards a non-partisan standpoint कि हम चलो politics को भूल जाते हैं या political parties को भूल जाते हैं और हम ऐसे आते हैं. But I think it's also an important thing to figure out a way of diversity and inclusion rather than just inclusion, and say that शायद सबकी ideologies अलग हैं, लेकिन फिर भी हम एक common कॉमन चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं कि जो वायलेंस अगेंस्ट वुमेन है पॉलिटिक्स में, जो फाइनेंशियल काइंड ऑफ रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स हैं जो वुमेन के लिए, वो कॉमन है अक्रॉस पार्टीज, एंड आई थिंक we'll have to come together. I think at Women for Politics also, I missed the introduction, a detailed introduction in the beginning of the call, but I think at Women for Politics also what we are trying to do is we understand that एक जो politics
for women, ये जो career choice है, वो एक बहुत ही एक grim picture है. I think it's not respected, as Madhu ji has also said, and I think everyone else on the panel will also agree, and the participants would agree to this also, कि politics एक बहुत अच्छी चीज नहीं है और महिलाओं के लिए तो एकदम ही अच्छी चीज नहीं देखी जाती है, be it at any level. And I think to change that narrative, we need to look at evidence through research. We need to look at success stories. We also need to look at challenges, I think, but also see how the challenges have been challenges have been challenged, for the lack of words. But I think हम women for politics में ये करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भी ऐसे organizations हैं जो काम कर रहे हैं उनको साथ लाके उनके बारे में learn करके उनके बारे में spread करके information to the larger public. ये जो public beliefs and social beliefs की बात हम कर रहे हैं, I think we are also trying to do that, while we are trying on the parallel do studies to use it as an advocacy point for changing public policy, and policy on women's participation in politics. I think एक topic जो हमने नहीं discuss किया अभी तक, and possibly not in this discussion, but I think is also important, is voters, women as voters. And even if I think the stepping stone is also to kind of have women participate in voting, and free and fair voting. I think just having that understanding of voting is also, and your own candidates is also very important. जैसे कि एक internalization of patriarchy की बात हुई है, मर्दों को और मर्द representatives को ज़्यादा competent समझना, these are I think certain things that are also additional topics which all the participants, I would really recommend everyone to kind of read up, work towards, understand better. I think the work of civil societies here is very critical because I think government का काम है कि चलो हमने policy बना के दे दी, but I think after that what is something that might not come naturally, because the women and the men who are representatives come from the same society, और वो एक cyclic form में वही same challenges घूमते रहते हैं generation by generation, and sometimes we also have certain beliefs that are very difficult to break unless we actually have some intervention coming in. I think we would really want to, I mean, moving forward, we would really want to have more of such dialogues. I think write more about this in more accessible ways. भीम जी ने सक्सेस स्टोरीज, महिलाओं के सक्सेस स्टोरीज की बात की. आई थिंक हैविंग इट, वो वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में है, मोस्टली मराठी आई अज्यूम, एंड आई थिंक हैविंग दैट इन डिफरेंट लैंग्वेजेस, हैविंग speaking about it as much as we can, I think is something that we want to do at Women for Politics, and really want this to be heard at every level and break those narratives of one reservations being useless, which is very common kind of understanding when it comes to women's reservation, and also like the leadership that women have been able to demonstrate regardless of the resource constraints, but also these challenges like getting that U-turn, the lack of sustainable political participation of women at the grassroots. I think these are very important topics that we are trying to talk about, highlight, and understand also while we move forward in this journey. I think, are there any closing remarks from both the speakers? And I think after that we can also move to question and answers on this theme. मैं एक लास्ट पॉइंट बोलना चाहती हूँ. अभी तक हमने बात किया है वुमेन्स रिजर्वेशन के बारे में, women voters के बारे में, when it comes to women as a what are the, how are women voting or how are women performing, but we should also look at women as a political constituency. What are the women's issues that come into the political agenda of the parties, and what is the basis on which women should vote? For example, जैसे budget होता है,
तो फिर आता है महिलाओं के लिए गैस का प्राइस कम हुआ या बढ़ गया, या फिर कॉस्मेटिक्स के प्राइस कैसे हो रहे हैं. बट इट्स इम्पोर्टेंट फॉर पॉलिटिकल पार्टीज ऑल्सो टू एड्रेस as women voters what are the gender issues, right? And it's very important. अभी हमारे देश में gender budgeting का concept भी है. There are so many aspects of infrastructure, of travel, for example, of mobility, which are also gender issues. So women as a political constituency, जैसे हमारे बिहार में सारे पार्टीज ने वो कोई बोल रहे हैं there will be this thing about giving women jobs, more women skilling. Similarly, so if that is also a sign of change as more and more parties address women as voters. Women आप आके वोट दीजिए, ओके, लेकिन आप किस मुद्दे पे वोट दे रहे हैं और कौन सा जो स्टेक है वो आपके लिए है, वो भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है about women in politics. That's all. Thank you very much. ये दो बातें हैं कि जो मुझे लगता है कि मैं नहीं कह पाया पहले इसमें. एक तो है कि 50% रिजर्वेशन हो, 33% रिजर्वेशन हो, लेकिन हम लोग कैंपेन रेगुलरली एक चलाते हैं जिसकी ज़रूरत है वो है हर सीट महिला सीट. बियॉन्ड रिजर्वेशन अगर जाना है तो 100% जितने भी सीट्स है, यहाँ पर सीधी बात आती है कि इतनी सीट महिलाओं के लिए गई, इतनी सीट मर्दों के लिए गई. वो गलत है कि हर एक सीट पे महिलाएं कैंडिडेट हो सकती है. इसलिए वो हर सीट महिला सीट कैंपेन बहुत ज़रूरी है मीडिया के लिए, पार्टी के लिए, और इवन गांव तक पहुंचाने की बात है. दूसरी बात है जितना डिसेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस अच्छा हो उतनी महिलाओं की ताकत पंचायत लेवल पे बढ़ती है. जितना सेंट्रलाइजेशन ज़्यादा है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग हर गांव में हो सरकार बांटो दिल्ली के अधिकार, ये करना ज़रूरी है. आज तो स्थिति यही डेफिनेटली आ रही कि ऊपर काफ़ी सेंट्रलाइजेशन हो रहा है और नीचे हम डिसेंट्रलाइजेशन की बात कर रहे हैं. तो डिसेंट्रलाइजेशन महिलाओं को बहुत ताकत देती है और उनका पता नहीं उनका प्रिंसिपल ये डिसेंट्रलाइजेशन तरीके से काम करने का है. वी नीड टू, वो मैच हो रहा है लेकिन वो और कैसे ये करे बहुत ज़रूरी है. और जैसे मधु जी बता रहे थे कि गांव स्तर पर बहुत सारी महिलाएं अपने अपने लेवल पर आंगनवाड़ी है, आशा वर्कर है, ग्राम सेविका है. हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि इनका एक स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन हो जो चुनकर आई हुई जो महिलाएं हैं उनको सपोर्ट करे. तो ये चीजें कुछ है कि जो महिलाएं अपने आप, और हम सब लोग जो काम कर रहे हैं ना, जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हमने लाई है वो कैसे शेयर करें, और जो चैलेंजेस हैं उस पर हम लोग एक साथ कैसे काम करें. मुझे लगता है ये दोनों जरूरी है. हम लोगों ने कोशिश की है, यहाँ पर ग्राम पंचायत दर्शन है, जॉइंट हाउस ओनरशिप है, ऐसी चीजें है कि जो महिलाओं को बहुत ताकत देती है. तो मुझे लगता है ये सारी बातें जो है कि पॉजिटिव चीजें जो ताकत देने वाली है वो शेयर करें, और जो चैलेंजेस हैं उसके ऊपर एक साथ अगर जितना पॉसिबल है काम कैसे करें. थैंक यू. Thank you, आप दोनों का. I think these are again very critical points. Also now we would like to move to questions. Chat box में कुछ questions directly panels के लिए पूछे गए हैं और कुछ general questions भी हैं. I think to start with, there is one question about violence against women in panchayat, at the panchayat level, and I think ये women leaders जो हैं उनके against जो violence है, if I may just rephrase the word and summarize this, I think one key violence, how are women, what kind of violence do women face? I think the scale of it or the gravity of it, and also I think how has RSCT worked on it, and I would also want to learn from C3 also how have both the organizations kind of supported women in dealing with such violence. मैं बोलूं या मधु जी बोल रही है? चला? ओके. एक तो शुरुआत में वायलेंस काफी था जब 93 में रिजर्वेशन मिला और हमने काम शुरू किया. तब से एक ध्यान में आ रहा था कि शुरुआत में केसेस वायलेंस यानी सुइसाइड, एक्चुअल वायलेंस, मार पीटना, ये सारी बातें थी. लेकिन जैसे जैसे संगठन बढ़ते गया उस तरीके से मॉरल एक और प्रेशर भी तैयार होते गया कि ये नहीं हो सकता. उसमें हम लोगों ने अलग अलग कानून भी बनाते गए
कि ये वायलेंस नहीं होना चाहिए। सबसे ज्यादा वायलेंस होता है पॉलिटिकल पार्टी में, पार्टी का जो डोमिनेंस है वहां पर, और फैमिली लेवल का वायलेंस थोड़ा डील कर सकते हैं। फिर हम लोगों ने क्राइसिस स्क्वाड शुरू किया हर एक जिले में कि कहीं पर भी क्राइसिस हो तो 24 आवर्स में वहां पे पहुंचना चाहिए। बिल्कुल, अभी 100 महिलाएं ऐसी तैयार है कि ऐसा कुछ होता है तो तुरंत वो बम्बई आके हम लोग क्या धरना है और कुछ करना है वो कर सकते हैं। लेकिन शुरुआत में ये बहुत काम करना पड़ा, धीरे धीरे वो कम होते जा रहा है। लेकिन एक हम लोगों ने एक्टिविटी अभी शुरू की है विच इज वेरी यूजफुल, वो है सेफ्टी ऑडिट। ग्राम पंचायत को ही हम बोलते हैं जहाँ पे महिलाएं, हर एक पंचायत में कुछ लोग हैं महिलाएं हैं, उनमें से एक्टिव महिलाएं भी है, तो उनकी जिम्मेदारी ये बनती है कि गांव में सेफ्टी ऑडिट तैयार करना। कुछ पहले दिन हर एक स्कूल में, कॉलेज में, सब जगह पर एक डब्बा रखना, वहां पे वो सारे उनके सवाल डालेंगे। उसके बाद फिर पब्लिक हियरिंग होती है, पब्लिक हियरिंग के बाद सारी महिलाएं लड़कियां अपने इसमें आएगी, मैदान में आएगी, गांव का नक्शा बनाएंगी और वहां पर अनसेफ प्लेसेस कौन कौन सा है ये देखेगी। तो मुझे ये लगता है कि गांव का जब सेफ्टी की बात हम करते हैं तो एक महिला का वायलेंस के बारे में बहुत चर्चा शुरू हो जाती है। अभी सेफ्टी ऑडिट इज अ पार्ट ऑफ ग्राम पंचायत, वहां पे सारे लोगों को बुलाया जाता है, जो अधिकारी वर्ग है उनको बुलाया जाता है, एंड दिस सेफ्टी ऑडिट इज बिकमिंग अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट नाउ। बहुत सारी चीजें हमने जो किया ना वो सारे फिर गवर्नमेंट के पास दे दिए। जैसे कि ट्रेनिंग का मॉडल तैयार किया क्रांति ज्योति करके, वो क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले के नाम पर शुरू हो गया और वो मॉडल पूरा गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट कर लिया। मुझे लगता है कि वायलेंस के मुद्दे पर दो लेवल पे, इंटरनल लोकल लेवल पे इमीडिएट मशीनरी होनी चाहिए, और एट द सेम टाइम ऊपर भी पॉलिसी लेवल पर भी कुछ बातें होनी चाहिए। अभी हम लोगों का एक वुमेन्स कमीशन के साथ जाना है, कब जाना है, कैसे जाना है, पुलिस स्टेशन जाना है, हम लोग पुलिस स्टेशन दर्शन, ग्राम पंचायत दर्शन, पंचायत समिति दर्शन, ये महिलाओं का ज्यादा से ज्यादा करते हैं। ये सीखने से ज्यादा वो देखने से सीखते हैं, ये मानना है। तो मुझे लगता है कि उसमें एक डेफिनेट कुछ ये आया है, बदलाव आया है। लेकिन जितना प्रेशर ज्यादा होगा, संगठन जितना मजबूत होगा और तुरंत कुछ हो सकता है ऐसे, क्योंकि उसमें समय जाएगा तो वो बहुत बढ़ता है। लेकिन आज भी ये मुद्दा है कि ऑक्शन सेल गांव का पंचायत का हो रहा है, कुछ जो महिला सरपंच है उनको साइड ट्रैक किया जाता है, ये चीजें है। लेकिन उसमें एक प्रेशर तैयार करना संगठन का बहुत जरूरी है, और नेचुरली महिलाओं का एजुकेशन होना लीगल एस्पेक्ट्स के बारे में, और क्राइसिस स्क्वाड स्ट्रॉन्ग वहां पर अगर होता है तो वो भी एक प्रेशर बनता है। मधु जी, हम लोग एक्चुअली एज एन ऑर्गेनाइजेशन हम एक्टिवली इलेक्शन के टाइम पे हमारी कोई उतनी रोल नहीं रहती है। हम जानकारी में सपोर्ट करते हैं एंड हम लेकिन देखते हैं कि यस, more than the physical violence, it is about abuse or that slander. वो तो है। हंगर प्रोजेक्ट की बहुत अच्छी स्टडी है इनफैक्ट अबाउट विमेन जो लोग पंचायत में चुन के आई हैं। इसका सॉल्यूशन तो है कि विमेन कमिंग टुगेदर, एंड जैसे कि भीम जी ने भी कहा, हम लोग इस जो अब ये चौथा हम लोगों का पड़ाव है ऑन वर्किंग विद पंचायत, तो उसमें हम लोग इस बार एक्टिवली सोच रहे हैं कि वायलेंस को लेकर के पंचायत लीडर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स, जीविका दीदी सबका एक कलेक्टिव बना के हम इस मुद्दे को डील करें। थैंक यू। आई थिंक मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आई थिंक ये क्वेश्चन है श्रवण की तरफ से अबाउट the corruption or the malpractices that women have to face at the panchayat level. Right, I think family and other pressures ki baat hum kar chuke, but I think in general the corruption, I think Bhimji, you have earlier also spoken about the how the community has also come up with this sharing of power or certain other kind of corrupt practices that are there which limit women's participation in fuller participation in politics at the panchayat level. And I think we can have Bhimji and Madhuji if you have any comments. Yeah, एक तो इन्वेस्टमेंट जो है ना इलेक्शन में, वहीं से करप्शन शुरू हो जाता है। तो इलेक्शन में इन्वेस्ट कौन करता है? अगर हस्बैंड करता है तो ही स्टार्ट सेइंग कि मुझे इंटरेस्ट के साथ वापस मिलना चाहिए, और दैट इज द थिंग वेयर
बहुत संभाल के रहना पड़ता है कि अगर ये ना हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वो कहते हैं कि एक ड्रॉवर में मेरा पैसा डालते जाओ और दूसरा ड्रॉवर आपका जो है वो करो, लेकिन मेरा पैसा जब सब लौट के वापस आएगा तब आंदोलन का सुनो, तब तक आंदोलन का मत सुनो। वैल्यूज और ये सारी चीजें हैं, इस पे ध्यान मत दो। तो वहाँ पे बहुत ही सिचुएशन, हमारे पास क्लियर सॉल्यूशन है ऐसी बात नहीं है। लेकिन एक मुद्दा डेफिनेटली है कि जितना हम लोग मेल मेंबर्स का भी ट्रेनिंग करते हैं हमारे सावित्री एकेडमी के जरिए, लेकिन ज्यादातर सवाल मेल मेंबर्स के हमारे पास ये आते हैं कि हाउ टू करप्शन के लिए कहाँ कहाँ स्पेस है। महिलाओं का ये सवाल नहीं आता है। और मुझे लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि करप्शन के लेवल पर काम शुरू करना। वी टेल देम कि आप सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाओ। जो मधु जी कह रहे थे कि स्कूल में खिड़की नहीं है, पीएससी ठीक से नहीं चल रहा है, और महिलाएं ज्यादातर सॉफ्ट इश्यूज पे काम करती है। मेल मेंबर से ज्यादातर जहाँ सीमेंट रेती रास्ता बनाना है और कुछ करना है, जहाँ पर बहुत परसेंटेज हाई मिलता है, वहां पर लोग जाते हैं। तो मुझे लगता है ये बहुत गलत होगा कि जेंडर के हिसाब से करप्शन नहीं होता है, इट इज ओपन। लेकिन मुद्दा डेफिनेटली है कि करप्शन जो हो रहा है उसमें टोटल पंचायत का करप्शन, उसमें महिलाओं की भागीदारी, और अगर वो संगठन बनाते जाते हैं, इस बाजू से लोग आते रहते हैं, तो धीरे धीरे वहाँ करप्शन कम हो सकता है। लेकिन इमीडिएटली करप्शन की बात करना या लिकर इश्यू की बात करना, ये बिल्कुल उनके ऊपर नो कॉन्फिडेंस आने की बात है। और मुझे लगता है कि करप्शन के बारे में हम जो देखते हैं, बोलते हैं ना, भी काफी जनरल टर्म्स है। मुद्दा ये है कि करप्शन देने वाला कौन है, करने वाला कौन है, यार वो कल्चर किस तरीके से बना है। रघुनंदन जी ने एक शुरू किया था कि आई पेड ब्राइब। मुझे लगता है उसका अगर अनुभव और रिपोर्ट आप पढ़ेंगे तो वो बात समझ में आएगी। तो ये काफी डेलिकेट इश्यू है जिसका एक जवाब मेरे पास तो नहीं है। स्टिल वी आर फाइटिंग विद इट। Sugandha, you're on mute. Sorry, Madhu, if you have anything else to add, please. तो इट्स करप्शन की बात तो एक है, बहुत बड़ा मुद्दा है। दूसरा ये है कि मीटिंग ही नहीं होती है। Starting with that the panchayat should meet, the executive committee should meet every 2 months. There should be a gram sabha at least 4 times a year. There should be महिलाओं को महिला सभा होनी चाहिए, महिलाओं को मीटिंग में आनी चाहिए। बिहार में वार्ड सभा होनी चाहिए। तो ये सब चीजें ही, ये सब जो फोरम्स है जहाँ पे बात उठ सकती है या जहाँ पे हम जवाबदेही मांग सकते हैं, और जहाँ पे जाते जाते महिलाओं को भी प्रैक्टिस होता है लीडरशिप का, वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है ऑफ यू कैन कॉल इट, we wouldn't like to call it corruption, but it is very poor non-transparent governance, right? तो वो भी, उसको भी, उस पे भी काम करना बहुत जरूरी है। जो ये भी फैक्ट है कि पंचायत को, जैसे बिहार में कई जगह पंचायत भवन ही नहीं है, या जो उनको एक सेक्रेटेरियल सपोर्ट चाहिए वो नहीं है। ई पंचायत होना आजकल बहुत जरूरी है, लेकिन उसके अगर बजट ही नहीं है या साधन ही नहीं है या ट्रेनिंग ही नहीं हुई है, तो फिर कहाँ से आपके जो ये सब जो जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि बहुत अच्छा होता है डॉक्यूमेंट में बोलना कि लेवरेज द पोटेंशियल ऑफ पंचायत टू स्ट्रेंथन दिस मिशन, चाहे वो हेल्थ मिशन हो या सैनिटरी। लेकिन वो कैसे करना है? ऐसे ही उठ के चले आके तो नहीं कर सकते ना। उसमें क्या होना है, कैसे होना है, उसके लिए क्या उनको पेपर वर्क सपोर्ट कहाँ से मिलेगा, वो कैसे उसको करेंगे, तो वो सब स्पेल्ट आउट होना जरूरी है। तो इसीलिए इस बात को प्रायोरिटाइज करना चाहिए हमें। जैसे कि कोविड में निकल के आया कि हमको पब्लिक हेल्थ स्ट्रेंथनिंग, फैमिली हेल्थ केयर, ये सब स्ट्रेंथन करना जरूरी है। उसी तरह से गवर्नेंस स्ट्रक्चर, जो लोकल गवर्नेंस है, इट शुड बी well resourced, it should become empowered, enabled and held accountable. So it should be a very important ministry department of the state and the center, and from there you have to make a beginning. Yeah, राइट। मधु जी, आपके लिए एक स्पेसिफिक क्वेश्चन है सुवर्णा से। सॉरी इफ आई एम प्रोनाउंसिंग द नेम रॉन्ग। It says, can you please explain the journey of with an example briefly to understand the methods of capacity and confidence building, considering so many hurdles. So we have another last 5 minutes. I'd request you to comment quickly on this as if possible.
राइट। तो एक स्टोरी है, वो अभी दोबारा, क्योंकि उनका सीट रोटेशन पे चल रहा था, वो अभी नहीं है वार्ड मेंबर, लेकिन वो शी वॉज ऑलरेडी द मदर ऑफ एन यू नो टीनेज सन, एंड जब वो चुन के भी आई, वो मीटिंग में जाती नहीं थी या एसोसिएट नहीं होती थी, उनको परमिशन नहीं मिला था जा करके ट्रेनिंग। जो हमारा फर्स्ट रेसिडेंशियल, हम उसको रेसिडेंशियल इसलिए भी रखते हैं ताकि वो घर से अलग होके उनका एक पीयर ग्रुप बने। तो शुरू में उनकी फैमिली को कन्विंस करने में ही इतना समय लगा, लेकिन जब वो ट्रेनिंग में गई तो हस्बैंड ने बोला कि रोज शाम को मैं आपको लेके जाऊंगा वापस, ठीक है। तो जब वो वहां गई तो उन्होंने देखा कि ट्रेनर भी जो है वो मेरी ही तरह एक यंग महिला है। मेरे चारों तरफ जो महिलाएं हैं, हम लोग उनके साथ अलग अलग इंटरैक्टिव एक्सरसाइजेस करते हैं, पावर वॉक जैसे। तो उनको लगा कि जो बाकी जो है वो मेरे ही तरह है, उनके स्ट्रगल्स भी मेरी तरह है। तो शाम को जब उनके हस्बैंड आए लेने तो उन्होंने उनको वापस भेज दिया, बोले यहाँ तो बिल्कुल सेफ है, मेरी जैसी ही महिलाएं हैं। तो वहां से जा करके हमारा यूजुअल एंट्री पॉइंट होता है थ्रू द हेल्थ सर्विसेज, गिविंग इंफॉर्मेशन ऑन हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। लेकिन वो बोली अगर नेता होके मैं पूछ सकती हूँ कि इस सेंटर में दवाई नहीं है या दीदी क्यों नहीं आ रही है, तो मैं स्कूल में भी पूछ सकती हूँ ना, टीचर क्यों आंगन में बैठ के स्वेटर बुन रही है, क्लास में बच्चों को क्यों नहीं देख रही है। मैं मिड डे मील का भी निगरानी कर सकती हूँ कि कैसा खाना मिल रहा है। तो वो करते करते उनको पता चला कि एसएमसी की तो चेयर वो ही है ऑन पेपर। तो इस तरह से वो धीरे धीरे उनका वो अलग अलग उन्होंने एक बिल्डिंग बनाई। उनके मैं क्या कहूँ, इट इज सो अनफॉर्चुनेट कि अगली बार जो वो सीट ना वो रिजर्व नहीं रहा और वो चुन नहीं पाई और वो बैठ गई। यू टर्न तो नहीं लिया, लेकिन उनका वो जर्नी अधूरा रहा क्योंकि उसके बाद वो जिला परिषद या एमएलए एमएलसी तो नहीं बन पाई, राइट। तो उनको हमने पूछा कि हम लोग महिलाओं को ये सब काम करने के लिए कोई इंसेंटिव तो देते नहीं है, तो वो क्यों ऐसे फ्लड आ गया वहां सीतामढ़ी जिले में। बहुत कुछ जैसे कोविड में भी कई जगहों पे एम्बुलेंस नहीं आ पाई थी, डिलीवरी हो रही थी रात को, उन्होंने अपनी जेब से पैसे दी। तो उन्होंने बोला पहले मैं बेटे का नाम लेना नहीं चाहती, सो एंड सो की माँ की तरह नाम से जानी जाती हूँ। आज मेरा बेटा जब गांव से जाता है उसको बोलते हैं वार्ड सदस्य का बेटा है। तो मेरे लिए वही सबसे उपलब्धि कि मेरी पहचान बनी है। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है, बट जैसे कि मैं शुरू से भी कह रही हूँ कि इट इज अ जर्नी एंड इट इज अ स्टेप बाय स्टेप जर्नी। और जैसे स्ट्रगल में और महिला उनके साथ जुड़ जाती है और उनको नियमित रूप से जानकारी मिलती रहे, कुछ सपोर्ट मिलती रहे, तो वो काफी कुछ आगे जा सकते हैं। थैंक यू। Thank you. So we have just 2 minutes. I would request both the speakers if we could just take a couple of minutes to end this. And I'd request Shreyas, I hope your question was answered. I know you asked a similar question. I hope that was answered. I'd invite you to for the closing remarks, and after you, probably Akhil, to just have a last few lines. हमें बोलना है, श्रेयस भाई बोलेंगे? श्रेयस जी, अगर आपकी परमिशन हो तो हम 1-2 मिनट और लेके क्लोजिंग रिमार्क्स करना चाहेंगे. Yeah, we can go ahead with the closing remarks. Maybe a minute. Thank you. Yeah. चले, मेरा एक ही मानना है कि ये जब काम करते हैं इसमें एक छोटी सी पोएम है, नल अगर खराब हुआ है, महिलाओं ने की है, नल अगर खराब है उसे बदली करो, नाव अगर बिगड़ी है तो उसे फेंक दो, लाइट अगर चली गई है तो उसको दुरुस्त करो, और राजनीति खराब हो चुकी है तो उसे तंदुरुस्त करो। मुझे लगता है ये अगर करना है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा एक स्लोगन है, ज्वाइन पॉलिटिक्स टू चेंज पॉलिटिक्स। राजनीति बदलने के लिए राजनीति में आना बहुत जरूरी है। मुझे लगता है जैसे कि अभी मधु जी ने एक स्टोरी कही, ऐसी कई स्टोरीज महिलाएं तैयार कर रही है विच आर वैल्यू बेस्ड, इश्यू फोकस्ड एंड पीपल सेंटर्ड। मुझे लगता है राजनीति तो इसी तरफ जानी चाहिए ना, एंड दे आर टेकिंग इट। सो हाउ टू स्ट्रेंथन इट इज
उनके साथ काम करने की बहुत जरूरत है। तो आई एक्चुअली इनवाइट ऑल ऑफ यू, जितने भी हमारे पास इंग्लिश में चीजें हैं, वी विल सेंड इट यू, लेकिन वी इनवाइट यू टू हेल्प अस, सपोर्ट अस, क्योंकि केवल अकेले महिला राज सत्ता आंदोलन का काम बिल्कुल ही नहीं है। एंड थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलकर, थैंक यू। Thank you. And I really, I mean, for me, I think personally it was a great learning. आप दोनों से बात कर कर और हमारे audience के questions सुनकर भी. And I'm sure that बाकी जो मेरे colleagues हैं Asian Pathfinders में participants and Akhil from Women for Politics, I think हम सबके लिए एक बहुत बड़ी learning है. And I think moving forward, we would really want to do this more often, probably look for other ways of synergies, collaborating and support in any possible way. Right, over to Shreyas. Are you doing the closing remarks? Or? Yeah, I think I agree with you, Sugandha. When we started this initiative, more than organizer, we ourselves have been considered as a primary audience, and definitely we learned a lot from the grassroots experience of Madhuji and Bhimji. And I would like to really thank both of them for sharing their experiences and for their time, and definitely Sugandha for keeping this session engaging. It was really interesting to hear your thoughts also, and looking forward to continue our cooperation with Women for Politics, and definitely Bhimji and Madhuji also, because we will try to spread this word. Our experiences, most of these topics related to women's are do not get traction in the uh, society like the other topics. Maybe a general politics, if it would have been a general politics, we would have seen more people here. But when we see here the word women comes and we see the numbers are dropping. So, but like, I think still we need to spread this word and we need to let it out. And we are going, we have already recorded this session and we're going to share this session with our audience and for the other people also, especially from our family and other people as well. And thank you so much. I think Akhil will have last word and we will end the session here. Akhil. Thanks, Shreyas. I think, yeah, now I am confident after listening to both Bhimji and Madhuji that the journey for the last 3 decades after 73rd Amendment has been in the right direction, and we have a lot more to contribute towards this journey. Thank you very much for joining this. And I just posted the links to RSCD's and C3's websites as well. For anyone interested in checking out their work, please feel free to do so. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you so much. Have a nice weekend, everyone. Yeah. Thank you so Bye-bye. much. Thank you. Bye-bye.